Assalamu alaikum everyone, and welcome to another session with the SECP Innovation Office. Very glad to be resuming these sessions again after a slight gap. Today's session is going to be very interesting. This is going to be giving you guidance on company incorporation. So as I'm sure you know, the SECP has been doing a lot of work to enable ease of business in the country. They are working vigilantly on their e-services to facilitate young founders and businesses of all sizes. And our speaker today, Ms. Saila, has been working with the SECP for a very long time on multiple projects of theirs, especially to do with business registration, company law. So tons of knowledge to gain today. Thank you everyone for joining us. And Ms. Saila, welcome and thank you for being here. We can begin the session. Assalamu alaikum everyone. My name is Saila Jamshaid, and first of all, I would like to thank Numair and the NIC for arranging this seminar. And inshallah, today it would be a very interesting and useful insight of the different forms of the businesses and how to register a business in Pakistan and in which form you can register a firm. We will discuss about all these details. And I would like to know whether you can ask your live session people whether they would be convenient in Urdu or English. I can deliver a lecture in both languages. So it is better that we should choose that medium of instruction in which they would be more comfortable and they would be able to gain maximum out of it, how to incorporate a company in Pakistan. So it's up to them. So with that, we've actually received a comment that says Urdu would be great. So let's do the session in Urdu. Okay, fine. I will try to keep it as convenient for them as they would like. Next. So, yeah. Let me share the presentation with you, and then we will start formally our presentation about the company incorporation. Incorporation process, company value. So no matter if it is viewable? Yes, slides are visible. Okay, well, my name is Saila Jamshaid and I am working with SECP since 2005, and since last 2 years I'm working with this registration department, and there is a newly established department in the SECP called Business Center, and the function of basically Business Center is it's a centralized incorporation function of all over the Pakistan. So all the incorporation is being done at the Business Center. So today we will discuss about its process. So agenda of presentation will be just a minute. So first of all, we will discuss about the common business structure. What are the common business structure in Pakistan, and what are the benefits of incorporating a company in Pakistan, and what would be the types of the companies and the legal framework under which companies are being incorporated. And then we will discuss about the brief process of registration of the company, and then the facilitative measures taken by the SECP over the years for the ease of doing business in Pakistan. And then to some extent the post-incorporation requirements. So what are the requirements after? If we have a time, then we will also discuss about the post-incorporation requirements. So what are the requirements after incorporating a company, once you incorporate a company in Pakistan? So there are different common business structures. There are different types of business structures like sole proprietorship, partnerships, LLPs, and company. Today our focus would be on the company. Like अगर आप लोग देखें तो businesses जो हैं या तो लोग individuals को start करते हैं as a sole proprietor के anyone can start it मतलब get any time. कोई भी जैसे आजकल ऑनलाइन बिजनेसेस का बहुत ज्यादा ट्रेंड है, लोग ऑनलाइन बिजनेसेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो एक सोल प्रोप्राइटरशिप के फॉर्म में होता है. कोई भी इंडिविजुअल एक कंपनी तो नहीं बनाता, एक फॉर्म ऑफ बिजनेस क्रिएट कर लेता है और वो अपना बिजनेस घर बैठे स्टार्ट करना शुरू कर देता है, लेकिन उसको कहीं रजिस्टर नहीं करता. दैट इज अ सोल प्रोप्राइटर बिजनेस. देन देयर इज अ पार्टनरशिप बिजनेस के
two या more than two people join hands और वो partnership का business कर लेते हैं, और again that partnership business is registered under the Partnership Act with the registrar of the firms. Then there is a concept of the limited liability partnership. This is a concept recently introduced by SECP in 2018. This concept is similar to the partnership, but it has a flexibility of the partnership and it enjoys the benefits of the company. What benefits LLP would enjoy as a company, we will discuss further. Whatever are the benefits of incorporating a company, same are the benefits of the LLP, but LLP is an easy mode of its form formation is easy, and they are not post incorporation any requirements on LLP, as there are some requirements which companies has to meet every year, annually or quarterly, or on immediate basis, or some on need basis. It all depends upon the scenarios of the company. So what is company? First of all, हम ये discuss करेंगे company क्या है. Company एक legal form of entity, एक legal form of businesses होता है. When two या more than two people join hand और एक structure बना लेते हैं और उसको SECP के पास register करवा लेते हैं under the Companies Act, तो उसको categorize किया जाता है company. Company एक separate legal entity होती है. Company run and owned by people होती है, but those people have separate legal entity from that company. Means that those people A and B form a company. The company is a separate entity. It's an artificial person, and it is being controlled by, owned by the natural persons. So whatever the working is done on the platform of the company, what are its assets and liabilities, they belong to the company, not to the individuals. Individuals are the subscriber of those companies. So company has a separate legal entity that is registered by the persons for some lawful purpose under the Companies Act 2017. Presently, we have more than 183,320 companies registered with the SECP, and every month we register more than 2,000 companies. And next, what are the benefits? क्यों company incorporate किया जाए? Benefits क्या हैं? What are the pros of companies? आपको क्या फायदे होते हैं company बनाने के? Company की एक separate legal entity है, separate from its individuals. Suppose अगर आप individually एक business start करते हैं और उस business में कोई भी loss हो जाता है, that is a loss, your personal loss. But when you come into the corporate structure, एक separate company incorporate करवाते हैं, तो कोई भी losses होते हैं तो company के platform पे वो company के losses होते हैं. पर्सनल लाइबिलिटीज उसी एक्सटेंट तक होती है जिस अमाउंट तक आपने उसके अंदर शेयर सब्सक्राइब किए होते हैं. सपोज अगर आपने 10 शेयर्स और 10 रुपीज का एक शेयर लिया हुआ है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 100. आपकी लाइबिलिटी 100 रुपीज तक है एट द टाइम ऑफ द वाइंडिंग अप. अगर कंपनी के आपको वाइंड अप करते हैं उसके कोई लॉसेस होते हैं. बट इन पार्टनरशिप दैट इज नॉट द केस. In sole proprietorship, that is not the case. So it is one of the benefit of the incorporation. If you will incorporate a company, your personal assets and liabilities would not be liable to pay off the liabilities of the companies, because these all businesses are done on the platform of the company, and so company is responsible for everything. Then companies enjoy limited liability. जैसे मैं पहले भी डिस्कस कर रही थी, कंपनी की लाइबिलिटी जो होती है, subscribers जो होते हैं, their liability is limited to the extent of the amount they have invested, to the extent of the shares they have subscribed in the company. Again, that is not the case in the sole proprietorship and the partnership. Again, this is a added benefit for forming a company enjoying a limited liability. This limited liability concept is the amount liability of the subscribers and the promoter is limited to the amount of the shares they have subscribed in the company. Then company has a perpetual succession. अगर आप सोल प्रोप्राइटर में काम करते हैं तो यू कैन वाइंड अप दैट बिजनेस एनी टाइम. सपोज अगर एक सोल प्रोप्राइटर स्टार्ट करता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो दैट सोल प्रोप्राइटर बिजनेस इज एंड. बट दैट इज नॉट द केस विद द परपेचुअल सक्सेशन. रीजन इन द कंपनीज, बिकॉज कंपनीज हैव परपेचुअल सक्सेशन. कंपनीज में शेयर ट्रांसफर हो जाते हैं. सपोज अगर फैमिली बिजनेस है तो फादर से आगे किड्स को, किड्स से देयर किड्स, ग्रैंड डॉटर्स को, ग्रैंड चिल्ड्रन को. मीन की कंपनी की एक परपेचुअल सक्सेशन होती है. कंपनी की बर्थ तो हो जाती है, लेकिन उसकी एंड करना उसके ये नहीं हो सकता है किसी एक बंदे के साथ वो कंसर्न्ड है. कंपनी के शेयर वो किसी और को भी ट्रांसफर कर सकते हैं. अनलेस एंड अंटिल कंपनी डोंट ऑप्ट फॉर वाइंडिंग अप, तो कंपनी की लाइफ खत्म नहीं होती. इट इज अ परपेचुअल सक्सेशन. देन ओनरशिप की ट्रांसफरेबिलिटी. Suppose A and B intend to incorporate a company. At any time they can transfer their shares to any person like C and D. लेकिन sole proprietorship में ऐसा नहीं होता. वो इंडिविजुअल का ही बिजनेस है, वो इंडिविजुअल ही कैरी करता है. या तो वो उसको वाइंड अप कर देगा या उसको आगे लेके चलेगा. बट वो दैट इज कंसर्न टू दैट इंडिविजुअल ओनली, नॉट विद द अदर पर्सन. ही कांट ट्रांसफर हिज sole proprietorship to the other person. But in company you can easily share transfer from one person to another person.
Then this company incorporation become a part of the documented and regulated economy. It becomes a part of our statistics. Our country can came to know about how many corporate businesses are in Pakistan. So they can make some informed decision about this sector. They can take some good decisions for this sector. Okay, how many sectors are being incorporated, companies are incorporated in which sectors, what are the total number of the incorporated companies in Pakistan. They can, so it becomes a part of the documented and regulated economy. Then the companies have enhanced credibility. You might have heard about number of big companies. There's these companies on the stock exchanges. They have enhanced credibility, enhanced in the form of they can invite deposits from the public once they are listed on the stock exchange. If somebody wants to do business, so nobody would be interested to do business with the person A. But if that person A is a shareholder, a subscriber of some company, so everybody would like to do business with that person because it's the company. Company has some financials. Its financials are built over the years. Every year they have to make their financial statements. So one can make informed decision उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखे कंपनी की क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या वर्थ है, कंपनी के एसेट्स कितने हैं, कंपनी की लायबिलिटीज कितने हैं, कंपनीज के प्रॉफिट कितने हो रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज क्या है. सो ये सारे जो फीचर्स हैं ये कंपनी बनाने की, ये दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ द कंपनी इनकॉर्पोरेशन. फिर यू कैन इजीली have an access to the capital from the market, like जो companies listing में चली जाती हैं वो IPO के through public से deposits invite कर सकते हैं, लेकिन एक individual can't do this public offering from the general public. Again, that would help in raising the funds easily from the public. So these are the benefits of incorporating a company. Okay, keeping into view these benefits, people opt for incorporating their businesses. So there are different types of companies. कुछ companies जो ऐसे मैंने discuss किया कि limited by shares, उनकी liability जो है it's limited to the extent of the shares they have invested. Some companies are limited by guarantee. Guarantee में क्या, guarantee companies क्या होते हैं? Companies at the time of incorporation, subscribers give guarantee to the amount, again their liabilities to the extent of that guarantee कि वो guarantee दे देती हैं कि हम इतने 50,000 तक, 1 लाख तक, 2 लाख तक वो guarantee कर देती हैं कि अगर हम ये business के winding up के ऊपर इसकी company की जो भी liabilities होंगी उसको pay off करने के लिए हमारी इतनी guarantee है. उसके बाद company के अपने assets should be utilized to pay off the liabilities of the companies. And normally जो guarantees companies होती हैं, they are not meant for the profitable business. They are normally meant for the not-for-profit companies. 99% limited by share, 100% limited by share companies are formed for the purpose of the profitability, but limited by guarantee companies are formed generally for not-for-profit. Their objective is not to earn the profit, but for the philanthropy purpose. And for that, the companies has to get one extra license to do this philanthropy activities. And then there are unlimited companies. Companies don't go for this structure in 1,88,000 companies. We have just one unlimited company. In this case, their liability is not limited, but their personal assets can also be utilized just like a sole proprietorship to pay off the liabilities of the companies in the time of the winding up. So we don't have any, except one, we don't have any unlimited company in total portfolio of 1,84,000 companies right now. It's on the register of the companies of the SECP. Though it is not a preferred mode of type the company people opt for. So again, companies to limited liability companies, they are further divided into, as I've discussed, by shares and by guarantee. By shares companies are divided further into the public company. Public companies are either listed companies or they are either unlisted companies. And then there are private companies. Private companies, against a single person can also form a private company, that is called a single member company. And the multi-member, 2 or more than 2 members can form a company, that is called a private company. Then guarantee company can be formed with share capital and without share capital. But again, 99% companies are formed without share capital. They just give their guarantee. And again, which type of companies these are? These are NGOs and trade organizations. Their purpose is not to earn the profit, but to help the people, to promote for the welfare objectives of the, like in the area of health, education, commerce, trade. These companies come under this mode of the type of the company they opt is the guarantee company. So what is the difference between the single member company, private company, and the public company in terms of their shares, numbers and directors and IPOs? Like in single member company, सिर्फ एक बंदा जो है वो single member company बना सकता है.
प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम में 2 मेंबर्स चाहिए होते हैं और मैक्सिमम ये 50 तक जा सकते हैं। और पब्लिक कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 3 people can subscribe to the share of the company और maximum जो है वो अनलिमिटेड है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। Like in listed companies, any one of you can buy the share of the company from the stock exchange and you can become the member of that company. So again, minimum directors are the person who manage the affairs of the companies. They can be the subscribers or shareholders of the company and they cannot be the. Normally in private companies, shareholders are the same as the directors of the company. The same subscribers become the directors of companies, but in large companies, like in public companies and mostly in the listed companies, it's not possible to manage the affairs of the company. Then they, out of those number of shareholders, they define some people. For private company, minimum 2, and for public company, minimum 3, and for listed companies, 7 directors are required to manage the affairs of the company. These are the minimum directors should be on the board of the directors of the companies. Then single member companies and private companies, they can't invite deposits from the public, and only public companies are allowed to invite deposits from the public either. But if they go into the listing, they can done it through IPO, or if not, they can invite deposits generally from the public. Again, transfer of shares, it is in single member companies, there is no transfer of shares because it is only a one member. If they, in case of the death of that single member company, that there is a one concept of the nominee. That nominee is the person who, in case of the death of that single member, transfer the shares of the company to the legal heirs of the company. We will discuss this concept further, how nominee will help that single member company to transfer its shares. But that there is no concept of the transferability of shares in the single member company. If that single member if they transfer the share to any other person, it means they have become 2 members, and that 2 members are required in the private company, not in the single member. Then, whereas in public company, there is no restriction on the transferability of the shares. One day one can transfer his shares, can buy any shares from the stock exchange, and another day they can sell through these brokers. So shares can easily be transferred from one person to another person. But in private company, it is all depend how board of the directors determine how shares would be transferable. That is given in their articles of the association. So who would form single member company, private company, or public company? Normally single member company वो लोग बनाते हैं जिनकी नीड इतनी नहीं होती बिजनेसेस की, स्मॉल स्केल के ऊपर जो लोग बिजनेस कर रहे होते हैं। प्राइवेट कंपनी जो है वो मीडियम स्केल के ऊपर अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप प्राइवेट कंपनी बनाते हैं, और लार्ज स्केल कंपनीज जो होती हैं वो पब्लिक कंपनी से तरफ जाती हैं, क्योंकि जितना आपकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो इट्स नॉट नेसेसरली कि आप अपनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट खुद उसको मीट कर रहे हो, तो फिर आप टाइप ऑफ कंपनी, फिर आप अपनी कंपनी की टाइप ही चेंज कर सकते हैं। अगर एक दफा आपने सिंगल मेंबर कंपनी बनाई तो दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द प्राइवेट कंपनी, एंड प्राइवेट कंपनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द पब्लिक कंपनी। सो अगर आपकी इसी तरह अगर आपकी कैपिटल की नीड इंक्रीज होती है तो आप अपनी कंपनी की टाइप इंक्रीज कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि अगर आपकी फाइनेंशियल नीड कंपनी खुद नहीं पूरी कर रही तो वो पब्लिक से पैसा जो है ना वो डिपॉजिट्स इनवाइट कर लेती है इन द फॉर्म ऑफ द शेयर होल्डिंग। सो एज सून एज आपका बिजनेस जो इंक्रीज होता है, एक्सपैंड होता है, तो आप टाइप ऑफ द कंपनी उसके अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं। अब जो भी कंपनीज हम बनाते हैं, जो एक लीगल फ्रेमवर्क है जिसे कहते हैं कंपनीज एक्ट 2017, वट एवर द एक्शन इज बीइंग डन, कंपनी जो इनकॉर्पोरेशन होती है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कंपनी कौन लोग बना सकते हैं, एवरीथिंग इज गिवन इन दिस लीगल फ्रेमवर्क, दैट इज कंपनीज एक्ट 2017। Basically, first is the name availability of the company, and that section 10 of the Companies Act deals with the name availability of the company, and then there is the incorporation, that is the section 16 of the Companies Act 2017, जो कि companies incorporation के process के साथ deal करते हैं। और under the Companies Act there are companies incorporation regulations। एक्ट होता है, एक लीगल फ्रेमवर्क होता है, एक ओवरऑल लॉ होता है, उस लॉ के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं, लेकिन उनका प्रिंसिपल जो होता है वो ड्राइव एक्ट से ही किया जाता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बनते हैं वो सिंप्लीफाई किए जाते हैं एक्ट में। एक्ट में हर चीज नहीं लिखी होती जो कि रूल्स एंड सेक्शन 16 में कंपनीज बनाने का तरीका तो लिख दिया, लेकिन कंपनी कैसे एप्लीकेशन बनाएगी, कैसे सबमिट करेगी, कौन से फॉर्म्स के थ्रू करेगी, क्या इंफॉर्मेशन देगी, ये सारी चीजें जो है ना वो रेगुलेशंस में डिफाइन की जाती है।
रेगुलेशन इज बेसिकली अ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, लेकिन एज एनेबलिंग प्रोविजन जो होती है उसकी कंपनीज एक्ट में ही होती है। सो कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रेगुलेशंस जो हैं वो बनाई गई हैं फॉर dealing with the cases of the name availability or incorporation. Section 3, Regulation 3, 4 and 5 जो हैं, ये 3 sections जो हैं, rules regulations जो हैं, ये deal करती हैं companies incorporation में, read with section 10 and 16 of the Companies Act 2017. अच्छा, एक कंपनी, सपोज आपने सोच लिया आज कि मैंने एक कंपनी बनानी है, मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ और मैंने अपने बिजनेस को एक कंपनी के फॉर्म में लेके जाना चाह रहा हूँ, तो क्या इंफॉर्मेशन आपके माइंड में क्या क्या क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए एक कंपनी बनाने के लिए? हम वो प्रीरेक्विजिट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस कि सबसे पहले कि कंपनी का नाम क्या रखना चाहते हैं, कि कंपनी का क्या नाम होगा। आप एक नाम सोचेंगे कि मेरी कंपनी का ये नाम होना चाहिए। कंपनी का नाम जो है वो सेक्शन 10 के अंडर SECP जो है ना अलाउ करता है, और कंपनी का नाम जो भी आप रखते हैं, हम लोग उसको, हमारा क्राइटेरिया कंपनी एक्ट के अंदर सेक्शन 10 के अंदर एंड रेगुलेशन 3 के अंदर, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली हम नेम देते हैं। सपोज अगर कोई कंपनी है, कंपनी का नाम जो है वो रिजेंबलिंग नहीं होना चाहिए हमारी एग्जिस्टिंग कंपनी से, आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, कंपनी का नाम डिसेप्टिव नहीं होना चाहिए, कंपनी का नाम कोई ऐसा नहीं होना चाहिए विच ऑफेंड द like religious susceptibilities of anyone. इसके अलावा कुछ नाम के क्राइटेरिया हैं, जैसे सपोज एक वर्ड एसोसिएशन या फाउंडेशन, तो ये नॉर्मल प्राइवेट कंपनी को नहीं मिलता वर्ड, ये सेक्शन 42 लाइसेंस जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज होती हैं उनको मिलता है। इस तरह इन्वेस्टमेंट का वर्ड, इन्वेस्टमेंट फाइनेंस, प्राइवेट इक्विटी फंड, ये लाइसेंस्ड एंटिटीज को, बिजनेसेस को ये नाम मिलते हैं। एक प्राइवेट कंपनी को नॉर्मल प्राइवेट कंपनी जिसका प्रिंसिपल लाइन कंपनी का ट्रेडिंग हो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो, मार्केटिंग हो, सेल्स हो, फार्मास्यूटिकल्स हो, इस टाइप के बिजनेसेस को इस तरह के वर्ड्स नहीं मिलते। उनको जो है ना रूल रेगुलेशन जो है ना उसके अंदर क्राइटेरिया दिए हुए हैं कि डिफरेंट वर्ड्स का, कि फेडरल का वर्ड जो है वो कब मिलेगा। फेडरल का वर्ड जो होता है वो गवर्नमेंट की कंपनीज को मिलता है। एसोसिएशन, फाउंडेशन का वर्ड एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑब्जेक्ट कंपनीज को मिलता है। ट्रस्ट का वर्ड, प्राइवेट इक्विटी फंड का वर्ड जो है वो इन्वेस्टमेंट कंपनीज को मिलता है। तो ये कुछ क्राइटेरियाज है नेम के। फिर आपने ये चूज करना होता है, सपोज एक बंदा है जिसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनी बनाना चाह रहा है, जैसे मेरा नाम साइला है, तो मैं एक कंपनी बनाना चाहूंगी साइला इम्पैक्ट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को डोनेट करता है। मैं मेरी प्रिंसिपल लाइन जो होगी वो यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कि नाम जो होता है दैट शुड कमेंसरेट विद द प्रिंसिपल लाइन ऑफ द बिजनेस। ऐसे नहीं हो सकता कि मैं कंपनी का नाम रखूं ABC ट्रेडिंग कंपनी और कंपनी का जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट हो वो फार्मास्यूटिकल हो। प्रिंसिपल लाइन और कंपनी का नेम जो है वो आपस में कमेंसरेट करनी चाहिए। सो सबसे पहले आपने अपनी कंपनी का नाम सिलेक्ट करना है, फिर आपने उसका सेक्टर, और नाम जो भी आप रखेंगे वो उस सेक्टर के अकॉर्डिंगली आप नाम रखेंगे। उस सेक्टर की जो प्रिंसिपल लाइन होगी नेम उसके साथ जो है ना मैच करना चाहिए। फिर नेक्स्ट चीज आ जाती है कि आपका कंपनी का एड्रेस कौन सा होगा, आप कंपनी का ऑफिस का एड्रेस कौन सा बनाएंगे। आप अपने घर का एड्रेस भी जो है ना कंपनी का एड्रेस बना सकते हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस इसलिए जरूरी होता है कि यहाँ पे सारी जो है ना कॉरेस्पॉन्डेंस होती है, ये एक ऑफिशियल एड्रेस होता है कंपनी पे का जिसके ऊपर कंपनी के साथ सारी कॉरेस्पॉन्डेंस की जाती है। देन हु विल बी द सब्सक्राइबर एंड शेयर होल्डर कंपनी, मीन कि कौन से दो लोग, सपोज मैं और नुमैर मिलकर कंपनी बनाते हैं तो हम सब्सक्राइबर हैं इस कंपनी के, हम दोनों क्या है शेयर होल्डर हैं। अगर आपने सिंगल मेंबर कंपनी सपोज मैंने बनानी है तो मैं कहूँ कि नहीं ठीक है मैंने सिंगल मेंबर कंपनी बनानी है तो मैं मैं ही एक सब्सक्राइबर शेयर होल्डर होगी। लेकिन प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए 2 सब्सक्राइबर जरूरत है, मीन 2 वो लोग जो के जिसको आप अपनी जुबान में पार्टनर्स कह सकते हैं, 2 पर्सन्स कह सकते हैं, हम उसको सब्सक्राइबर कहते हैं क्योंकि वो लॉ की लैंग्वेज में इसको सब्सक्राइबर या शेयर होल्डर कहते हैं क्योंकि वो सब्सक्राइब कर रहे होते हैं कंपनी के शेयर्स को। देन डायरेक्टर्स कौन होंगे, कंपनी के शेयर्स को कौन मैनेज करेगा। प्राइवेट कंपनीज में नॉर्मली ये फैमिली बिजनेसेस होते हैं, 2 पीपल्स मिलकर बनाते हैं, तो वही लोग जो होते हैं वो डायरेक्टर्स होते हैं। फिर आपको ये पता होना चाहिए कंपनी का हमने कितना कैपिटल रखना है, कितना ऑथराइज कैपिटल कंपनी का होगा और कितना पेड अप कैपिटल होगा। ऑथराइज कैपिटल वो कैपिटल होता है कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द कैपिटल होता है, जिस अमाउंट ऑफ कैपिटल का कंपनी अपने शेयर्स इशू कर सकती है। और पेड अप कैपिटल वो होता है कि जो एक्चुअली एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन आप जो है वो शेयर्स सब्सक्राइब कर रहे होते हैं। पेड अप कैपिटल और ऑथराइज कैपिटल सेम भी हो सकता है, लेकिन पेड अप कैपिटल कभी भी ऑथराइज कैपिटल को इंक्रीज नहीं करता।
कब अगर आपका इन फ्यूचर अगर आप नीड देखते हैं, अगर आपने सपोज आज एक ऑथराइज कैपिटल 1 लाख रख लिया और फ्यूचर में आप देख और आपका पेड अप कैपिटल सपोज 1000 है, तो आपके पास क्वेश्चन है कि आप 99,000 और अपना कैपिटल इंक्रीज कर सकते हैं उस ऑथराइज कैपिटल तक। लेकिन अगर आपकी बिजनेस की नीड और बढ़ती है और आप देखते हैं कि नहीं, इस पेड अप कैपिटल से हमारा काम नहीं हो रहा, आपने फंड्स रेज करते हैं पब्लिक से, लेकिन आप सबसे पहले फिर क्या करेंगे, अपना ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज करेंगे कंपनी का। जब तक ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज नहीं करेंगे तो आप पेड अप कैपिटल इंक्रीज नहीं कर सकते, आप पेड अप कैपिटल की अमाउंट कभी भी ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये जो है आप किसी भी टाइम पे कंपनी का ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज कर सकते हैं सब्सिक्वेंट टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। सो आपको क्या क्या जो है ना आपके माइंड में क्वेश्चन होने चाहिए बिफोर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी। कंपनी का नाम क्या होगा, किस सेक्टर में मैं कंपनी बना रहा हूँ, मेरी कंपनी का एड्रेस क्या होगा, मेरी कंपनी के शेयर होल्डर कौन होंगे, मेरी कंपनी के डायरेक्टर कौन होंगे, और मेरी कंपनी का ऑथराइज और पेड अप कैपिटल क्या होगा। ये 5, 4, 6 क्वेश्चंस हैं जो कि आपके माइंड में होने चाहिए कंपनी बनाने के लिए। फिर हमें क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। एसएससीपी का जो हमारा ई सर्विस का पोर्टल है उसके ऊपर कंपनी इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस बेसिकली जो है वो एंड टू एंड डिजिटाइज्ड है। मतलब कि फ्रॉम सिटिंग एट द होम यू कैन इनकॉर्पोरेट अ कंपनी, क्योंकि हमारा जो फी का प्रोसेस है वो भी ऑनलाइन है। यू कैन पे द फीस ऑनलाइन either through debit card or the credit card or the ADC payment. So just you need what you need, just required a CNIC copies of the directors and subscribers. और अगर आप फिजिकल एप्लीकेशन देते हैं तो आपको जो है ना विटनेस के डॉक्यूमेंट्स भी देना पड़ते हैं, और अगर फॉरेनर है तो उसके अंदर पासपोर्ट की कॉपीज होती हैं। आगे चल के हम बताएंगे आपको कंपनी कौन कौन बना सकता है, और कंपनी बना अगर सब फॉरेन सब्सक्राइबर्स बनाते हैं तो क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो ओनली डॉक्यूमेंट्स टू रिक्वायर्ड इज द CNIC कॉपीज, और आपकी जो फोन जो आपकी सिम का नंबर जो आपकी सिम इशू हो वो आपकी CNIC कॉपी के नंबर के अगेंस्ट इशू हो, क्योंकि सबसे पहले आप पोर्टल के ऊपर यूजर रजिस्ट्रेशन बनाते हैं। तो यूजर रजिस्ट्रेशन के जरिए जरूरी है, क्योंकि हमारा सिस्टम नासरा के साथ भी कनेक्ट है और PMD के साथ भी कनेक्ट है, कि वो वेरीफाई करता है बैक एंड के ऊपर कि ये जो बंदा आ रहा है कंपनी बनाने के लिए, जो यूजर क्रिएट कर रहा है, इसी के अगेंस्ट जो है ना ये CNIC जो नंबर दे रहा है वो सिम इसी के अगेंस्ट इशू कर रही है। तो जब वो दोनों मैच कर जाते हैं तो आपका फिर जो है ना यूजर रजिस्ट्रेशन क्लिक हो जाती है हमारे सिस्टम में, और आप यूजर रजिस्ट्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। फिर आपको फिर एप्लीकेशन फॉर्म है हमारा बेसिकली एक नेम रिजर्वेशन का, उसको इनकॉर्पोरेशन फॉर्म 1 कहते हैं, और इनकॉर्पोरेशन का इनकॉर्पोरेशन फॉर्म 2 कहते हैं। ये इनकॉर्पोरेशन फॉर्म 1 और 2 जो है ना ये प्रिस्क्राइब है हमारी, जो मैंने आपको पहले बताई थी रेगुलेशंस के, उनका क्या फॉर्मेट होता है और उसके ऊपर क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। जब आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर रहे होते हैं तो वो आपसे कुछ फील्ड्स आप लोग एंटर करते हैं, तो ये फॉर्म खुद बहुत जनरेट हो जाते हैं हमारे सिस्टम से। हाँ, अगर आप ऑप्ट करते हैं टू फॉर्म अ कंपनी फिजिकली तो आप इन फॉर्म्स को डाउनलोड करते हैं और इन फॉर्म्स को फिजिकली आप फिल करते हैं और सबमिट करवा देते हैं फॉर इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी। लेकिन हमारी 99.9% जो इनकॉर्पोरेशन है वो ऑनलाइन हो रहा है, फिजिकल बिल्कुल 0.1% भी फिजिकल एप्लीकेशंस नहीं आती। 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनी बनाने के लिए, जो अगर आप ऑनलाइन सबमिट करवाते हैं एप्लीकेशन जो ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं, एक को मेमोरेंडम कहते हैं और एक को आर्टिकल कहते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बेसिकली उसके अंदर आपकी कंपनी का नेम बेसिक डॉक्यूमेंट होता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी का नाम, क्या कंपनी के ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या कंपनी की कैपिटल क्या है, कंपनी के सब्सक्राइबर शेयर सब्सक्राइबर पेज होता है। ये मेमोरेंडम की 5 क्लॉजेस होती हैं। और आर्टिकल्स जो होते हैं वो कंपनी के इंटरनल बायलॉज होते हैं कि कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स कौन होंगे, कंपनी के मेंबर्स कौन होंगे, डायरेक्टर्स कौन होंगे। कंपनी के आर्टिकल्स में आप लिखते हैं कि कंपनी की मीटिंग्स कैसे होंगी, जनरल मीटिंग कैसे होगी, क्वारम कंपनी का क्या होगा उस मीटिंग को हेल्ड करने के लिए। ये सारे जो इंटरनल कंपनीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो आर्टिकल्स एसोसिएशन में होती हैं। और ये भी आर्टिकल्स जो है ना ये हमारे लॉ में डिफाइंड है, ये भी एज पर जो है ना एज पर दैट डिफाइंड आर्टिकल्स आप जो है ना आर्टिकल्स अडॉप्ट करते हैं अपनी कंपनी बनाने के लिए। ये सारे मेमोरेंडम हमने पब्लिक कन्वीनियंस के लिए एससीसीपी की अगर आप वेबसाइट पे जाएं तो आपको मोर देन 100 सेक्टर्स के मॉडल मेमोरेंडम आपको प्लेस किए हुए जो है ना आपको मिलेंगे हमारी इस वेबसाइट के ऊपर। आप उनको देख के पढ़ के समझ सकते हैं कि क्या मेमोरेंडम क्या चीज होती है, कि उसके अंदर आपका कंपनी का नाम होता है, कहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है, कंपनी की क्या ऑब्जेक्टिव है, कंपनी की लायबिलिटी और कंपनी का कैपिटल। बेसिकली ये 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं मेमोरेंडम एसोसिएशन के। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो इंटरनल बायलॉज बता रहा होता है।
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जैसे मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, और ये प्रेस्क्राइब्ड है हमारे जो है कंपनीज एक्ट के टेबल बी में। इसमें नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस, ऑब्जेक्ट, लायबिलिटीज और सब्सक्राइबर पेज होता है, कैपिटल क्लॉज होती है। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मैं आपको डिस्कस कर चुके हैं कि इसके अंदर क्या क्या इंटरनल बायलॉज होते हैं। देखिए अब कंपनी कौन बना सकते हैं? कंपनी इंडिविजुअल भी बना सकते हैं, और एक कंपनी भी दूसरी कंपनी की सब्सक्राइबर कंपनी हो सकती है। सपोज एबीसी कंपनी जो है वो और एक इंडिविजुअल मिलकर एक और कंपनी बनाते हैं। इट्स नॉट नेसेसरली कि ओनली इंडिविजुअल्स कैन फॉर्म, कंपनीज कैन आल्सो फॉर्म अ कंपनी। और कंपनीज लोकल कंपनीज भी हो सकती हैं, और फॉरेन कंपनीज भी जो होती हैं वो भी सब्सक्राइब हो सकती हैं। इन दैट केस क्या होता है कि कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर कंपनी फॉर एज अ सब्सक्राइबर आती है तो जो एक्जिस्टिंग कंपनी होती है उसके एक साथ बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन लग जाती है। मीन कि उस कंपनी का बोर्ड सारे बैठ के एक रिजॉल्व कर लेता है एक रेजोल्यूशन कि हम एक नई कंपनी बनाने चाह रहे हैं, और ये कंपनी जो है इसमें इतनी इन्वेस्टमेंट कैपिटल करेगी, तो वो कंपनी वुड बी अ सब्सक्राइबर ऑफ दैट कंपनी। और फॉरेन जो कंपनीज होती हैं वो भी फॉरेन कंपनीज भी जो है ना वो सब्सक्राइबर्स बन सकती हैं लोकल कंपनी के। उसके लिए फिर हमें फॉरेन कंपनी के कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे फॉरेन कंपनी में कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चाहिए होता है, वहाँ की कंपनी की बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए होती है, वहाँ की कंपनी की डायरेक्टरशिप की डिटेल्स चाहिए होती है। और अगेन जितने भी डॉक्यूमेंट्स फॉरेन सब्सक्राइबर कंपनीज के आते हैं दे आर नीड्स टू बी नोटराइज्ड एंड attested by the Pakistani embassy in that foreign jurisdiction, क्योंकि otherwise these documents are not acceptable documents in the Pakistan, because unless and until they are not notarized and authenticated by the Pakistani embassy in that country। और हमारी जो पॉलिसी है लैंड ऑफ पॉलिसी ऑफ द लॉ लैंड जो है कि जितने भी फॉरेन सब्सक्राइबर्स कंपनीज आती हैं उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर। जितनी भी फॉरेन कंपनीज या फॉरेन सब्सक्राइबर्स आ रही हैं, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जो है ना, कीपिंग इन व्यू दैट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एक अरेंजमेंट की हुई है हम लोगों ने मिनिस्ट्री के साथ कि ऐसी सारी कंपनीज एक अंडरटेकिंग दे देती हैं, और उस अंडरटेकिंग के ऊपर हम कंपनी तो बना देते हैं, लेकिन उसके बाद उन कंपनीज के सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर फॉरवर्ड कर देते हैं फॉर देयर सिक्योरिटी क्लियरेंस। और उस अंडरटेकिंग में ये चीज जो है ना मेंशन करते हैं कि इन केस फ्यूचर में उनकी कंपनी सिक्योरिटी क्लियर नहीं होगी तो दे वुड चेंज देयर सब्सक्राइबर, दे वुड चेंज द डायरेक्टरशिप एंड द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, एक्सेप्ट इंडियन फॉरेन कंपनीज। अगर इंडियन कोई सब्सक्राइबर आता है या इंडियन कंपनी आती है तो उसके लिए प्रायर जो है ना सिक्योरिटी क्लियरेंस है, उसके अंदर कंपनी नहीं बनाते जब तक कि सिक्योरिटी क्लियरेंस और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर उसकी अप्रूवल नहीं दे देती। अब हम आपको जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस है, जैसे मैं आपसे डिस्कस कर रही थी, ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है। ऑनलाइन जो प्रोसेस है उसको ई सर्विसेज मॉड्यूल कहते हैं, वो हमारा ई सर्विसेज सिस्टम के थ्रू जो है ना कंपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। बेसिकली इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, 4 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले आपने यूजर आईडी क्रिएट करना होता है। यूजर आईडी मीन अपने आपने सिग्नेचर क्रिएट करने होते हैं कि आपकी एक आइडेंटिटी होती है, और आपको एक पिन जनरेट कर देता है एसएससीपी, जो कि एक डिजिटल सर्टिफिकेट, एक डिजिटल साइन होता है आपका। जितने भी सब्सक्राइबर्स होते हैं वो अपना अपना एक पिन जनरेट करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आपने एक एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। हमारा जो सिस्टम है, हमारा सिस्टम इंटीग्रेटेड है एफपीआर के साथ भी, यूबीआई के साथ भी, पैसी के साथ भी। ये प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स और सेसी भी है, ये जो है ना ये प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स हैं। अगर किसी ने अपनी कंपनी एफपीआर के साथ, तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि एज सून एज द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड आपको एक एनटीएन जनरेट हो जाता है। लेकिन अगर किसी ने अपनी कंपनी एम्प्लॉयज ओल्ड एज बेनिफिट में जो है रजिस्टर करवानी है या प्रोविंशियल डिपार्टमेंट के साथ सिंध के और पंजाब के करवानी है, तो वो भी हमारा जो है ना कंबाइंड सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है विद ओनली सम इंफॉर्मेशन। यू कैन रजिस्टर योर कंपनी फ्रॉम द एसएससीपी पोर्टल विद दीज डिपार्टमेंट्स आल्सो। ये सारे जो मेजर्स हमने किए हैं ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, क्योंकि पहले कंपनी एसएससीपी के पास आती थी, फिर सेपरेटली वो एफपीआर के पास जाती थी, फिर बाकी यूबीआई के साथ जाती थी और प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स के जाती थी, जिसमें कंपनी का टाइम भी इन्वॉल्व था और कॉस्ट भी इन्वॉल्व था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है उसको मीट करने के लिए हमें दोनों इंडिकेटर्स को जो है ना रिड्यूस करना होता है, टाइम को भी और कॉस्ट को भी। तो इन्हीं मेजर्स को देखते हुए, इस टाइम और कॉस्ट को रिड्यूस करते हुए एसएससीपी ने इंटीग्रेशन की हुई है डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ, ताकि आप लोग वन टाइम हमारे पास आए और आपको बार बार ना तो आपका टाइम लगेगा और ना आपकी कॉस्ट लगेगी। आप डिफरेंट डिपार्टमेंट में इंडिविजुअली जाके एप्लीकेशन सबमिट करें। आपकी एप्लीकेशन की सबमिशन तो एक जगह पे है, लेकिन आपकी रजिस्ट्रेशन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के पास हो जाती है, और ये मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ एफपीआर के पास मैंडेटरी है। बाकी अगर आप ऑप्ट करते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं करते हैं, अगर आपकी नीड नहीं है तो आप लोगों के लिए मैंडेटरी नहीं है। और 4th स्टेप होता है कि जब आप सारी इन्फॉर्मेशन दे लेते हैं तो आप अपना सिग्नेचर करते हैं अपनी एप्लीकेशन पर। सिग्नेचर जो आपको पिन जनरेट होता है एट द टाइम ऑफ यूजर रजिस्ट्रेशन, वो पिन आपको एंटर करना होता है आफ्टर गिविंग अस ऑल द इंफॉर्मेशन, और फिर आप
सिग्नेचर करने के बाद आप जो है ना पेमेंट ऑफ फी करते हैं। अगेन पेमेंट ऑफ फी कैन बी डन ऑनलाइन थ्रू क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, और फिजिकली भी आप कर सकते हैं। अगर आपने फिजिकल करना होता है तो वहाँ पे आप जो है ना ऑन ऑफलाइन मॉड्यूल जो है ना ऑप्ट कर लेते हैं। चलान वहां से जनरेट हो जाता है। यू कैन टेक आउट द प्रिंट आउट द चलान एंड गो टू द बैंक एंड डिपॉजिट द फीस, और वो ऑटोमेटिकली जब आप बैंक में फी पे करते हैं तो यू डोंट कम टू द SECP फॉर गिविंग अस एनी एविडेंस। हमारा सिस्टम बैंक के साथ इंटीग्रेट है, वो बैंक से ऑटोमेटिकली हमें जो है रिकॉर्ड उनका जो है ना हमारे पास आ जाता है, और हमें इंटीमेट कर देते हैं कि पेमेंट हो जाती है, और आपको प्रोसेस जो कंपनी है वो हमारे पास आ जाती है फॉर फर्दर एग्जामिनेशन एंड इनकॉर्पोरेटिंग द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी। अभी मैं आपको एक इनकॉर्पोरेशन की वीडियो दिखाती हूँ कि प्रैक्टिकली जो है ना आप किस तरह अगर हमारे पोर्टल पे जाते हैं तो क्या स्टेप्स आप फॉलो करेंगे और आपकी कंपनी जो है ना वो बन जाएगी। कंपनी बनाने के दो तरीके मैं पहले ये आपको एक्सप्लेन कर दूं। एक तो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन प्रोसेस है और एक कंबाइंड है। स्टैंड अलोन में क्या होता है कि आप नेम अवेलेबिलिटी आप पहले लेते हैं और उसके बाद यू फाइल द एप्लीकेशन फॉर द इनकॉर्पोरेशन। और कंबाइंड में क्या होता है कि यू ऑप्ट फॉर बोथ द ऑप्शंस एट द सेम टाइम। You don't, in combined application, you don't need to form a memorandum and article. System auto generate कर देता है, keeping in view the principal line. आपसे information लेगा, memorandum और article उस basic information से खुद ही generate कर देगा, auto system generate करेगा। अभी जो मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ ये combined incorporation की वीडियो है। ये आप लोग मैं शेयर करती हूँ, आप लोग वीडियो देखें। कंपनी की रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार। अगर आप कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो इसका बेहतरीन तरीकाकार ये है कि आप एक कंपनी तश्कील दें। पाकिस्तान में कंपनियों की रजिस्ट्रेशन सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में की जाती है। कानून के मुताबिक पाकिस्तान का हर शहरी जो कि कौमी शनाख्ती कार्ड का हामिल हो कंपनी रजिस्टर करवाने का अहल है। पाकिस्तानी शहरी गैर मुल्की अफराद के साथ मिलकर जबकि गैर मुल्की अफराद भी पाकिस्तान में कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं। एक शख्स पर मुश्तमिल कंपनी को सिंगल मेंबर कंपनी जबकि 2 या ज़ायद डायरेक्टर्स पर मुश्तमिल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहलाती है। कंपनी की रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार निहायत आसान और मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन है। रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त SECP की वेबसाइट www.secp.gov.pk पर मौजूद ई सर्विसेज की सहूलत के जरिए दी जा सकती है। पहले मरहले में SECP की ई सर्विसेज में अपना अकाउंट बनाने के लिए फॉर्म फिल करें। ई सर्विसेज का इंतखाब करते हुए अपना अकाउंट बनाने के लिए सफ़ा पर दाएं जानिब लॉगिन के लिए दी गई जगह के नीचे दर्ज साइन अप फॉर नेशनल पर क्लिक करें। अगर आप गैर मुल्की शहरी या ओवरसीज पासपोर्ट होल्डर हैं तो साइन अप फॉर फॉरेन POC होल्डर्स पर क्लिक करें। आपके सामने ई सर्विसेज पर अकाउंट बनाने का फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म पर अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर या फिर नाइकोप नंबर दर्ज करें। अगर आप फॉरेन नेशनल हैं तो अपना पासपोर्ट नंबर या POC नंबर दर्ज करें। कार्ड के ख़त्म होने और इजरा की तारीख दर्ज करें। पासवर्ड का इंतखाब करें और दीगर मालूमात दर्ज करें। अपने कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर पर रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन नंबर और ईमेल दर्ज करें। वेरिफिकेशन कोड को दर्ज करें और नीचे दिए गए डिक्लेरेशन को क्लिक करके इस बात की तस्दीक करें कि दी गई मालूमात दुरुस्त हैं और रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा करवा दें। अब आपको फराहम किए गए मोबाइल फ़ोन नंबर और ईमेल पर 4 हिस्सों पर मुश्तमिल कोड मौसूल होगा। मोबाइल नंबर और ईमेल पर मौसूल होने वाले कोड का अलग अलग इंदराज करें। सिक्योरिटी कोड की तस्दीक करें। फॉर्म मुकम्मल होने पर आपको फराहम किए गए मोबाइल फ़ोन नंबर और ईमेल पर 4 हिस्सों पर मुश्तमिल एक और पिन कोड मौसूल होगा। ये आपका खुफिया पिन कोड है, इसे महफूज रखें। ये कोड कंपनी की रजिस्ट्रेशन के फॉर्म की तस्दीक और बाद अज़ां कंपनी के सालाना रिटर्न की फाइलिंग के लिए भी इस्तेमाल होगा। वाज़ेह रहे कि कंपनी के हर डायरेक्टर को ई सर्विसेज में अलग अलग अकाउंट बनाना और पिन कोड हासिल करना है ताकि हर डायरेक्टर कंपनी में बतौर डायरेक्टर शमूलियत के फॉर्म की तस्दीक कर सके।
ई सर्विसेज में अकाउंट बनाने के बाद आप कंपनी की रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू कर सकते हैं। अगर पहले मरहले में आप सिर्फ कंपनी का नाम महफूज करवाना चाहते हैं तो अपने अकाउंट के सफ़ा पर नाम रिजर्वेशन पर क्लिक करें, और अगर आप कंपनी के नाम की रिजर्वेशन और रजिस्ट्रेशन एक साथ करना चाहते हैं तो नाम रिजर्वेशन एंड इनकॉर्पोरेशन पर क्लिक करें। कंपनी की किस्म जैसे कि सिंगल मेंबर, प्राइवेट, पब्लिक लिमिटेड वगैरह का इंदराज करें और अपनी तरजीह के मुताबिक कंपनी के लिए 3 नाम तजवीज़ करें। कंपनी के मुजव्वज़ा नाम की वजाहत दर्ज करें। दी गई फहरिस्त में से कंपनी के मुजव्वज़ा कारोबार की नौइयत मुंतखब करें। कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बन चुका है। अगर आपकी मुजव्वज़ा कंपनी का किसी दूसरी रजिस्टर्ड कंपनी या किसी गैर मुल्की कंपनी से कोई ताल्लुक है तो इसकी वजाहत करें। रजिस्ट्रेशन की फ़ीस की अदायगी के लिए तरीक़ाकार का इंतखाब करें। रजिस्ट्रेशन फ़ीस क्रेडिट कार्ड, अदायगी के मुतबादिल ज़राया जैसे कि मोबाइल फ़ोन के अकाउंट या बैंक ब्रांच में जमा करवाई जा सकती है। अगर आप पब्लिक या प्राइवेट कंपनी रजिस्टर करवा रहे हैं तो टेबल ए पार्ट 1 का इंतखाब करें। अगर आप सिंगल मेंबर कंपनी तश्कील दे रहे हैं तो टेबल ए पार्ट 2 का इंतखाब करें। अगर आप सिंगल मेंबर कंपनी तश्कील दे रहे हैं तो अपने नामजद शख्स यानी वारिस की तफसीलात दर्ज करें। याद रखें, नामजद शख्स आपका शोहर, वालिद, वालदा, बीवी, बेटा, बेटी, भाई या बहन में ही से कोई हो सकता है। ये शेख प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर लागू नहीं होती। कंपनी का मुस्तकिल पता है तो रजिस्टर्ड एड्रेस पर क्लिक करें। बसूरत दीगर कंपनी के साथ खतो किताबत के लिए आर्जी पता का इंतखाब करें। कंपनी के एड्रेस की तफसीलात दर्ज करें। अगर मुजव्वज़ा कंपनी किसी दूसरी कंपनी की ज़ैली कंपनी है तो होल्डिंग कंपनी का नाम दर्ज करें। बसूरत दीगर खाली जगह छोड़ दें या नॉट एप्लीकेबल लिख दें। इस मरहले में आपको कंपनी के सरमाए की तश्कील यानी कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में मालूमात फराहम करना है। मंजूर शुदा सरमाए से मुराद सरमाए की वो हद है जो कि कंपनी अपने डायरेक्टर्स और सब्सक्राइबर में तकसीम करने का कानूनी हक रखती है, और ये तकसीम शेयर्स की सूरत में होती है। वाज़ेह रहे कि SECP की तरफ से कंपनी के मंजूर शुदा सरमाया की कोई हद मुकर्रर नहीं है। मंजूर शुदा सरमाया के लिए सबसे पहले हिस्सेस की किस्म यानी कि काइंड ऑफ शेयर्स का इंतखाब करें, जिसके लिए 2 ऑप्शंस दी गई हैं जो कि ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस शेयर्स की हैं। नई कंपनी की तश्कील के लिए हमेशा ऑर्डिनरी शेयर्स का इंतखाब करें। कंपनी के मंजूर शुदा सरमाए से 30 शेयर्स की कीमत मुकर्रर करें। कंपनी के सरमाए की तश्कील के बाद सिस्टम खुद ब खुद कुल सरमाया जाहिर करेगा। कंपनी के डायरेक्टर्स, सब्सक्राइबर का नाम, वालिद का नाम और कौमियत शिनाख्ती कार्ड के मुताबिक दर्ज करें। मंजूर शुदा सरमाए में से डायरेक्टर्स को जारी करदा शेयर्स पेड अप कैपिटल कहलाता है। कंपनी का सब्सक्राइबर होने के लिए कम से कम 1 शेयर का मालिक होना ज़रूरी है। अगर आप कंपनी की रजिस्ट्रेशन खुद कर रहे हैं तो प्रपोज्ड सब्सक्राइबर पर क्लिक करें। अगर आप इंटरमीडियरी या वकील हैं तो ऑथराइज्ड इंटरमीडियरी पर क्लिक करें। हलफनामे को गौर से पढ़ें और अगर आप इससे मुत्तफिक हैं तो बॉक्स को चेक करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करें। सामने जाहिर होने वाली लिस्ट पर इंफॉर्मेशन फॉर थर्ड पार्टी पर क्लिक करें। यहाँ पर फाहम की जाने वाली मालूमात FPR और दीगर सूबाई महकमों के लिए हैं। आपकी कंपनी का NTN बनाने और दीगर सूबाई महकमों को मालूमात फ्राहम करने के लिए ऐड एंड अपडेट पर क्लिक करें और फॉर्म को फिल करें। ओहदेदार जहाँ रहाइश पजीर है इस प्रॉपर्टी की तफसीलात दर्ज करें। फॉर्म को महफूज करें और पिछली सफ़ा पर आ जाएं। कैपेसिटी के खाने में अगर दफ्तर आपकी मलकियत में है तो ऑनर पर क्लिक करें। बसूरत दीगर टेनेंट यानी किराएदार पर क्लिक करें। प्रॉपर्टी टाइप पर आप अपने कारोबार के लिए इस्तेमाल करने वाली जगह से मुतल्लिक मालूमात फराहम करेंगे। प्रॉपर्टी टाइप पर क्लिक करने से सामने जाहिर होने वाली फहरिस्त में से प्रॉपर्टी की नौइयत का इंतखाब करें। प्रॉपर्टी फॉर्म पर क्लिक करें और मुतलका प्रॉपर्टी की किस्म का इंतखाब करें। अगर आपका दफ्तर मुकम्मल तौर पर आपके ज़ेरे इस्तेमाल है तो बिजनेस शेयर में 100% दर्ज करें। शराकतदारी की सूरत में अपने हिस्सा का इंदराज करें। बिजनेस प्रिंसिपल इक्विटी की फहरिस्त में से कारोबार की नौइयत का इंतखाब करें जो कि SECP में दर्ज कारोबार के मुताबिक हो। अगर आप नीचे दिए गए महकमों के साथ रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो मुतलका इदारे पर क्लिक करें। फॉर्म को महफूज करें और वापस पिछला सफ़ा पर आ जाएं।
अब फिल न्यू इनकॉर्पोरेशन अटैचमेंट फॉर्म पर क्लिक करें। यहाँ आप दरख्वास्त के साथ दस्तावेजात मुंसलिक कर सकते हैं। कंपनी के डायरेक्टर्स के शनाख्ती कार्ड की नकल मुंसलिक करें। अगर आप सिंगल मेंबर कंपनी तश्कील दे रही हैं तो डायरेक्टर के अलावा नामजद शख्स के शनाख्ती कार्ड की नकल मुंसलिक करें। इनके अलावा अगर आप दीगर दस्तावेजात भी फराहम करना चाहते हैं तो मिसलेनियस में मुंसलिक कर दें। याद रखें, मुंसलिक की जाने वाली तमाम दस्तावेजात PDF फॉर्मेट में हों और दस्तावेजात का साइज 2 MB से ज़्यादा ना हो। मुंसलिक किए गए फॉर्म को महफूज करें। कंपनी प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन के लिए फराहम की गई मालूमात, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की दस्तावेजात तैयार की जा चुकी हैं। इन दस्तावेजात का जायजा लेने के बाद महफूज कर दें। फीस की अदायगी के लिए फिल न्यू बैंक चालान पर क्लिक करें। बैंक चालान ऑटोफिल हो चुका है। सेव फॉर्म पर क्लिक करके महफूज करें। चालान फॉर्म NCB और UBL बैंक की किसी भी शाख में जमा करवाए जा सकते हैं। आखिर में साइन फॉर्म्स पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा करवाने के लिए सबमिट टू SECP पर क्लिक करें। वाज़ेह रहे कि कंपनी के हर डायरेक्टर को रजिस्ट्रेशन फॉर्म अलग अलग साइन करना है। फॉर्म साइन करने के लिए हर डायरेक्टर अपना यूजर ID इस्तेमाल करते हुए लॉगिन होकर अपना पिन कोड दर्ज करेगा। कंपनी के तमाम डायरेक्टर्स की जानिब से पिन कोड का इंदराज करने के बाद सबमिट प्रोसेस टू SECP पर क्लिक करके दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। कंपनी रजिस्ट्रेशन की फीस की अदायगी के लिए बाईं जानिब दिए गए पेमेंट ऑप्शन के मुताबिक फीस की अदायगी करें। रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त की मंजूरी की सूरत में कंपनी का डिजिटल इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आपको ईमेल कर दिया जाएगा। मज़ीद मुआवनत के लिए हमारे बिजनेस सेंटर में पीर ता जुमा सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक इन नंबरों पर राब्ता करें। Numair, let me share the presentation again. Right. Are there some more slides, Ms. Saila? नहीं, बस I have few of the slides. अगर if you people have time कि what measures SECP has taken for ease of doing business, मैं आपको साथ साथ तो बताती रही हूँ कि जो है ना, जैसे पहले डिजिटल निफ्ट के सिग्नेचर होते थे जिसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। SECP ने निफ्ट के सिग्नेचर्स को जो है ना वो खत्म किया और जो है ना पिन जनरेट करना शुरू कर दिया इंटरनली। तो ये वन ऑफ दी मेजर जो है ना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। सर्टिफिकेट जो है वो प्रोसेस एंड टू एंड डिजिटाइज्ड हो गया। अब जो ही कंपनी बनती है तो आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाता है और साथ साथ आपको ईमेल के ऊपर आपकी SMS भी आ जाता है आपके चीफ एग्जीक्यूटिव के नंबर के ऊपर। प्रीवियसली ये फीचर नहीं अवेलेबल था। आपको कंपनी का सर्टिफिकेट जो है फिजिकली आपके रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस के ऊपर पोस्ट किया जाता था, तो उससे भी अगेन टाइम एंड कॉस्ट जो है ना फैक्टर इन्वॉल्व था। अब आपको हमारा प्रोसेस एंड टू एंड डिजिटाइज्ड है। एज सून एज द कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो आपको डिजिटल सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। उसके ऊपर QR कोड होता है। आप उस QR कोड को अगर आप स्कैन करेंगे तो उसके अंदर आपको कंपनी का नाम और सारी इन्फॉर्मेशन में डिटेल आ जाती है। इसी तरह अब SECP ने रिसेंटली डिजिटल सर्टिफाइड कॉपीज भी इशू करना शुरू कर दिए। जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स होती हैं इनकी डिजिटल सर्टिफाइड कॉपीज जरूरत होती है कंपनीज को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में सबमिट करने के लिए। तो प्रीवियसली वो फिजिकली ऑब्टेन करते थे, अब ये डिजिटल सर्टिफिकेट इशू होते हैं। SECP का सिस्टम जो है वो बैंक्स के साथ भी इंटीग्रेट है। जो ही आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो हमारा बैंक जो है आपकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर लेता है और आप जब बैंक में जाते हैं कंपनी का अकाउंट ओपन करने के लिए तो आपसे डिजिटल सर्टिफाइड कॉपी डिमांड नहीं करता है और अदर वो अपने हमारे सिस्टम की जो इंटीग्रेशन है वो उससे एक्सेस कर लेता है कंपनी के डॉक्यूमेंट्स और वो इन्फॉर्मेशन गेन कर लेता है। ये कंपनी जो SECP के पास इनकॉर्पोरेट हुई है विद दिस अमाउंट ऑफ द कैपिटल, दीस पीपल एंड दीस आर द डायरेक्टर्स एंड सब्सक्राइबर्स ऑफ द कंपनी। फिर हम लोगों ने एक व्हाट्सएप का फीचर इंट्रोड्यूस करवाया। जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेशन करते हुए फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो साहब आपको एक व्हाट्सएप का फीचर जो है ना आपको एक बटन मूव करते हुए नजर आता है। तो जो भी कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हुए अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको फिल करते हुए प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू हमारे साथ लाइव कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है। तो हम आपको वहाँ पे फैसिलिटेट करते हैं, हेल्प करते हैं कि हाउ टू एंटर द डाटा इन दिस फील्ड्स। और आप लोग हमारा प्रीवियसली इनकॉर्पोरेशन वाज डन इन 8 SECP के 8 CROs है, कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस है इन डिफरेंट सिटीज, वन इन इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सखर, गिलगित बल्तिस्तान एंड कोयटा। तो प्रीवियसली ये कंपनी इनकॉर्पोरेशन इन CROs में होती थी, लेकिन अब ये प्रोसेस जो है ना सिंस लास्ट 2 years ये सेंट्रलाइज्ड इनकॉर्पोरेशन हो रही है। बिजनेस सेंटर जो एस्टेब्लिश किया गया है
इस्लामाबाद हेड ऑफिस के अंदर, और ये प्रोसेस सारा जो है ये सेंट्रलाइज्ड है। अब जहाँ कहीं से भी आप एप्लीकेशन आप सबमिट करेंगे तो बिजनेस सेंटर सेंट्रलाइज्ड इनकॉर्पोरेशन जो है वो बिजनेस सेंटर के थ्रू की, जो इसका ऑफिस जो है इस्लामाबाद में है। इसको सेंट्रलाइजेशन करने का ये भी पर्पस था कि कंपनी का प्रोसेस जो एंड टू एंड डिजिटाइज्ड है। अब आप फ्रॉम सिटिंग फ्रॉम योर होम आप कंपनी का प्रोसेस जो है वो कंपनी का प्रोसेस सबमिट करवा सकते हैं। तो लोग पहले वो सीआरओ की जुरिस्डिक्शन यूज करते थे क्योंकि फिजिकल ज्यादा इनकॉर्पोरेशन होती थी, लोग फिजिकली ऑफिसेज में चले जाते थे, अपनी एप्लीकेशन सबमिट कराते थे। लेकिन विद दिस ऑनलाइन सबमिशन एंड एंड टू एंड डिजिटाइजेशन प्रोसेस तो हमारा फिजिकल एप्लीकेशन जो है वो 0.1% भी नहीं आती। तो 99.9% पीपल ऑप्ट फॉर दिस ऑनलाइन इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। रीजन इजी भी ऑनलाइन इनकॉर्पोरेशन, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, मीन के फिजिकल एप्लीकेशन की फी डबल है फ्रॉम द ऑनलाइन एप्लीकेशन, और कंपनी इनकॉर्पोरेशन फीस भी बहुत मिनिमम है। अगर आपकी कंपनी का कैपिटल सपोज 1 लाख रुपीज है तो कंपनी कैन बी फॉर्म with a minimum amount of 1600 some rupees, which is very minimum. Previously ये फीसेस भी बहुत ज्यादा होती थी, इंफॉर्मेशन के फॉर्म्स भी बहुत होते थे, अब सिर्फ एक इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म है, पहले 3 फॉर्म्स होते थे। तो ये सारे जो भी मेजर्स एसईसीपी ने लिए हैं फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए लिए हैं, जिसकी वजह से हमारी वर्ल्ड बैंक में रैंकिंग भी जो है ना वो स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस में बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई है। फ्रॉम 108 points से अब वो 72 points, mean कि more than 30 points jumps किया because of all these measures taken by the SECP over the number of the years. So this is all about from my side. Now, if you people have any question and answer, so this is the growth rate of incorporation you can see on the slides. Like in 2009-10, there is 3,206 companies were formed, and there's a gradual increase in the company incorporation since over the last 2 years, and this increase in incorporation is due to this digitization, because it is very easy to incorporate a company, and cost is also very less and time is also very less. Like on daily basis, SECP registers more than 100 companies because it is a one-day incorporation process, and if you submit the application without any discrepancy, so you can incorporate a company within few hours. So this is the growth rate of the company incorporation over the years. Very valuable insight shared today. I hope everyone in the audience and those who continue to watch this video on our pages can get a whole idea of how easy it is to incorporate their company here in Pakistan, because SECP has been leveling up and doing so much work in this domain. Let's have a look at some of the questions that we have been asked during the session. Ma'am, I will share the questions to you and then you can answer. So question 1 here, does SECP automatically dissolve a company if it stops operating? And if so, how long before it stops operating? कि SECP automatically company किसी की भी dissolve नहीं करता। SECP का एक process है स्टॉक ऑफ द कंपनीज फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनी। उसमें कंपनीज को नोटिस, अगर कंपनी एसएससीपी ये देखती है कंपनी जो है ना वो बहुत अच्छे से नॉन कंप्लायंट है, एनुअल कंप्लायंसेस होती हैं, हर कंपनी को एनुअली एक फॉर्म ए सबमिट करवाना पड़ता है जिसमें उसको अपने पूरे ईयर की एक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ, अगर कोई उसकी कंपनी की एजीएम होती है हर ईयर के बाद, उस एजीएम के बाद उसको फॉर्म ए सबमिट करना पड़ता है, क्योंकि हर एजीएम के ऊपर कंपनी का जो है ना अकाउंट्स प्रेजेंट हो रहे होते हैं, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर होती है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड होता है और फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रेजेंट हो रहे होते हैं। उस एजीएम के बाद कंपनी को एक फॉर्म ए सबमिट करवाना पड़ता है। अगर वो कंपनी, अगर एससीपी देखता है कि 4-5 ईयर से कंपनी ने कोई अपना अकाउंट रिटर्न सबमिट नहीं करवाया, तो एससीपी नोटिस इशू करती है कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस के ऊपर, कि उनको बताती है कि आपकी कंपनी बनी थी और आपने कंप्लायंसेस नहीं की। अगर उन नोटिस का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, फर्स्ट नोटिस जाता है, सेकंड नोटिस जाता है, थर्ड नोटिस जाता है, तो फिर एससीपी जो है ना कंपनी को स्ट्रक ऑफ करती है। वो भी पब्लिक नोटिस जाने के बाद ऑफिशियली गैजेट नोटिफिकेशन होती है। 2 नोटिस नोटिफाई होते हैं, 425 सेक्शन है उसके अंदर। और अगर कंपनी उस फर्स्ट नोटिस के बाद भी, कुछ कंपनीज जो होती हैं वो कंप्लाई कर लेती हैं अपनी ऑब्जर्वेशन और कंपनी जो है ना वो एक्टिव कंपनी हो जाती है, बिकॉज ये सारी डोरमेंट कंपनीज होती हैं जिनके लिए ये एक्सरसाइज की जाती है। और जब कंपनी अपने फर्स्ट नोटिस का भी रिप्लाई, नोटिफिकेशन के बाद भी कोई गैजेट नोटिफिकेशन के बाद रिप्लाई नहीं आता, तो फिर फाइनली एसएससीपी नोटिफाई कर देती है गैजेट में, और वो कंपनी जो है ना वो स्टक ऑफ हो जाती है फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द कंपनीज। ये प्रोसेस होता है, ऐसे नहीं ऑटोमेटिकली कंपनी जो है ना वो डिसॉल्व कर देती। और कुछ कंपनीज खुद ऑप्ट करती हैं, जिन कंपनीज के ऑपरेशंस नहीं होते या एसेट्स एंड लायबिलिटीज नहीं होती, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही होती, तो वो सेक्शन 426 के अंदर खुद भी कंपनी अप्लाई कर सकती है फॉर देयर। ये एक इजी एग्जिट सिस्टम है। अदरवाइज कंपनी जो है ना वॉलंटरी वाइंडिंग अप थ्रू कोर्ट भी हो सकती है।
उसके लिए है कि कंपनी खुद अप्लाई करती है, और SECP वॉलंटरी वाइंडिंग अप कंपनी की करवा सकती है, एसेट्स और लायबिलिटीज, उसके लिए भी कुछ ग्राउंड्स हैं जो कि हमारे सेक्शन 301 पे लिखे हुए हैं कि कौन मेंशन है, प्रोवाइडेड है कि किन ग्राउंड्स के ऊपर कंपनी की वाइंडिंग अप जो है ना इनिशिएट की जाती है। Okay. And what are the monthly, if any, compliance requirements for a देखिए private मंथली limited company? there is no monthly compliance, Not annual even compliance, annual? no there is an annual compliance, आपको एक फॉर्म में सबमिट करना पड़ता है। इसके अलावा आपकी रिक्वायरमेंट बेस्ड जो है रिक्वायरमेंट्स हैं, लाइक अगर कंपनी ने अपना ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज करना है तो उसके लिए वो SECP को जो है ना फॉर्म सबमिट करेगी और प्रोसेस सबमिट करेगी उसकी अप्रूवल लेने के लिए। कंपनी ने अपना नाम चेंज करना है, कंपनी ने अपना स्टेटस चेंज करना है, कंपनी ने अपना ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज करना है, कंपनी ने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस चेंज करना है, तो ये इवेंट बेस्ड रिक्वायरमेंट है। अगर ये कंपनी करना चाहती है तो वो SECP से इंटरेक्ट करेगी, अदरवाइज कोई मंथली कंप्लायंस नहीं है। सिर्फ एक ईयरली फॉर्म आता है, फॉर्म ए जिसको कहते हैं, फॉर द कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, और गारंटी कंपनी के लिए फॉर्म बी आते हैं, और वो भी अप टू 3 मिलियन कैपिटल तक की कंपनीज के लिए फॉर्म ए भी अगर कोई चेंज नहीं है तो वो भी सबमिट करवाने की जरूरत नहीं है, और सिंगल मेंबर कंपनीज के लिए तो AGM भी नहीं होती और फॉर्म्स भी नहीं होते। Got it. Got it. And what is the procedure and requirements, real quick, for registering a NPO? कि NPO की क्या होता है कि कंपनी तो इनकॉर्पोरेशन का सेम प्रोसेस है NPO का भी, लेकिन इसमें एक एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है कि NPO लाइसेंस्ड एक्टिविटी होती है जिसके लिए SECP से आपको एक लाइसेंस लेना पड़ता है। एसोसिएशन विद चैरिटेबल एंड नॉन फॉर प्रॉफिट ऑब्जेक्ट्स रेगुलेशंस हैं, उसके अंदर आपको एप्लीकेशन सबमिट करवानी पड़ती है। उसके अंदर कंपनीज का जो सब्सक्राइबर आ रहे होते हैं उनका फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया होता है, उनको चेक करता है SECP, वो का ये जो है ना कंपनी जो है ना वो CIB तो ओवरड्यू नहीं है, उनके कुछ फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरियाज हैं, कंपनी किस ऑब्जेक्ट में काम करेगी, जो लोग आ रहे हैं उनका अपना क्या बैकग्राउंड है, ये सारे कुछ चेक्स करने के बाद एक SECP लाइसेंस देती है। अगर आपके रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हैं तो it's not difficult to get a license. That license is given to the company under section 42 of the Companies Act. जैसे कंपनी की इनकॉर्पोरेशन सेक्शन 16 में होती है, नेम विजिबिलिटी सेक्शन 10 में होती है, इसी तरह कंपनी का जो लाइसेंस होता है वो अंडर सेक्शन 42 होता है। तो वो लाइसेंस लेने के बाद बाकी इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस बिल्कुल सेम है, बस आपको एक एडिशनल जो है ना अटैचमेंट कंपनी इनकॉर्पोरेशन में ऑनलाइन प्रोसेस में करनी पड़ती है, और वो जो है लाइसेंस है। और लाइसेंस जो है वो ऑनलाइन, अभी हमारा SECP ने ऑनलाइन लाइसेंसिंग की रिजीम स्टार्ट नहीं की, वो फिजिकल एप्लीकेशन। Okay, okay, wonderful, wonderful. और फीस उसकी 25,000 है लाइसेंस। Got it, got it. Is there a way to obtain copies of company documents online? Yes, there is. You can apply for the digital CTC. जैसे I was earlier discussing previously, ये digital CTC जो थी वो physical थी, कि आप physically एक application SECP को लिखते थे, SECP के पास आती थी, then they issue the copies और physically जाती थी। Now SECP has introduced this digital CTC copy. Again, आप अपने घर बैठे हुए अप्लाई करते हैं, कंपनी के पोर्टल पे जाते हैं, डिजिटल CTC कॉपीज जो डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज है वहाँ पे आप उस चीज को हाईलाइट करते हैं, क्लिक करते हैं और फी पे करते हैं, और आपको कॉपी, यू कैन ऑब्टेन द कॉपी ऑफ दैट डॉक्यूमेंट्स व्हाटएवर। आपको किसी फॉर्म ए की जरूरत है, किसी फॉर्म 29 की नीड है, कंपनी के मेमोरेंडम या आर्टिकल की नीड, और डिजिटल CTC नॉट ओनली नेसेसरली कि वही लोग ले सकते हैं जिनकी कंपनी है, कंपनी के ये डॉक्यूमेंट्स है, बेसिकली SECP इज द कस्टोडियन ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी। तो ये रिकॉर्ड जो है ना कोई भी जनरल पब्लिक में से ले सकते हैं। These are publicly available documents. And ma'am, आप लोगों ने तो बहुत अपग्रेड किया है, but the banks still, some of them don't have online portals or a lot of accessibility options for private limited companies. So is बिल्कुल, SECP ये also कंसर्न मैंने working? क्वेश्चन पढ़ लिया है, ये इशू हम लोग आजकल फेस कर रहे हैं, और बैंकों के साथ इसको विग्रेसली वी आर टेकिंग अप विद द बैंक्स, क्योंकि बैंक्स को भी हम लोग अवेयरनेस सेशन उनके भी करते हैं, और बैंक्स को भी कहते हैं कि लोग जो है ना फैसिलिटेट करें, और ये कॉन्टिन्यूसली SECP उनके साथ फॉलोअप में रहता है। जो इस तरह की कोई कंप्लेंट्स कोई लोग हमें फोन करते हैं तो हम उन इश्यूज को टेकअप करते हैं विद द बैंक्स, क्योंकि हमें ये कंप्लेंट्स आती है कि आप लोगों का प्रोसेस इज वेरी एफिशिएंट, इट इज वेरी इजी टू फॉर्म अ कंपनी, बट इट इज समटाइम्स बैंक डोंट एक्सेप्ट योर डॉक्यूमेंट्स जो ऑनलाइन उन्हें ऑब्टेन करने होते हैं, वो दे स्टिल डिमांड पीपल कि आप हमें डिजिटल CTC कॉपीज SECP से ही लाके। तो ये इस तरह के इश्यूज, कोई फ्यू इश्यूज होते हैं, ज्यादा नहीं होते, वो फिर हम रेगुलरली जो है ना बैंक्स के साथ टेकअप करते हैं इस इश्यूज। Right. वो भी आहिस्ता-आहिस्ता they'll also start learning. ये देखिए, So बैंक एक खुद एक अथॉरिटी है, SECP एक अथॉरिटी है, SECP बैंक को
के साथ हम लोगों ने इंटीग्रेशन कर ली, लोग उसको पब्लिकली अवेयर कर दिया, फैसिलिटेट कर दिया, लेकिन बैंक्स कुछ जो है ना, बैंक्स का पता नेटवर्क बहुत बड़ा है, तो उनको इस चीज के ऊपर लाने के लिए कुछ जो है रिमोट एरियाज में जो बैंक्स होते हैं, शायद उनको स्टेट बैंक की तो उनके ऊपर इंस्ट्रक्शंस तो हैं, वो हेड ऑफिस से जो है ना कम्युनिकेट करते हैं अपने जितने भी बैंक्स हैं, 49 प्लस बैंक्स जो है वो SECP के इंटीग्रेटेड पोर्टल के ऊपर हैं, जो कि who are authorized to accept these digital cities copies. लेकिन आते हैं issues, some banks don't accept them. But they'll get there, I'm sure. So ma'am, what if someone was trying to register an e-commerce business? What could be a reason for them not being accepted? There is no such thing with the SECP. डेली बेसिस पे हम e-commerce की ऑनलाइन बहुत कंपनीज बनाते हैं, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट हमारी नहीं है कि हम नहीं बनाते, why not? There is no restriction on e-commerce. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुई है तो मुझे वो इंडिपेंडेंटली, हमारे बिजनेस सेंटर के नंबर है, दे कैन कॉल मी, और मुझे बता सकते हैं किस कंपनी में या कुछ क्या किस टाइप का इशू है उनका, तो वी विल डेफिनेटली लुक इनटू दिस. अदरवाइज ऑन डेली बेसिस वी फॉर्म कंपनीज हैविंग अ प्रिंसिपल लाइन ऑफ ई-कॉमर्स बिजनेस. Okay, okay. We have a very detailed question here that's going into one of the nitty-gritties of the form. So this question is regarding the principal line of business tab in Form 1, where one has to choose from a drop-down menu already prescribed principal line of business recommended by SECP. So there's one option of miscellaneous if the company does not find any form of the given options. So if we choose the said option, the CRO asks for clarification and the process for the filing prolongs. Is it possible that companies could give their own principal line of business instead of choosing from the options? Yes, companies can form by choosing the principal line as miscellaneous, but when they choose the miscellaneous, we ask the company कि हमें ये please they should let us know na कि what is their object, in which what work they want to do. Because we have more than 110 order memorandums in the principal line of business. Still there are businesses which are, if they are not included in those lists, so at least we should know कि what are the miscellaneous objective work they want to do, because there are some activities which are licensed activities. अगर वो miscellaneous लिख देते हैं, suppose वो investment की तरफ आ जाते हैं, तो investment is a licensing business. Right. अगर वो बैंक आते हैं तो बैंक is a licensing business. Same is the case अगर वो private equity funds की तरफ आते हैं, म्यूचुअल फंड्स की तरफ आते हैं, लीजिंग कंपनीज की, इंश्योरेंस कंपनीज की, तो उनकी भी तो प्रिंसिपल लाइन डिफाइन है, लेकिन मिसलेनियस ऐसा कोई, देखिए कंपनी कोई भी लॉफुल काम कर सकती है, लेकिन मिसलेनियस में वो लिख के हमें यही नहीं बता रही कि प्रिंसिपल, क्योंकि नेम जो हम डिसाइड कर रहे होते हैं बेस्ड ऑन प्रिंसिपल लाइन कर रहे होते हैं. अगर वो मिसलेनियस लिखते हैं और हमें बताते हैं कि ये हमारा कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, तो उसके ऊपर भी कंपनी का जो है ना नेम अलाउ किया जाता है, लेकिन वी नीड क्लैरिटी ऑन दैट मिसलेनियस. Makes sense. Makes sense. A lot of questions about that annual compliance we're getting. Okay, what are those compulsory compliance requirements on an annual basis? देखिए compulsory requirement I have already told you कि जो है ना सिर्फ Form A है for private companies and Form B for not-for-profit companies. Annual just simple Form A है. There is no other annual compliance. Right. And is it necessary to have a dedicated office, some kind of address that you give along with your form? No, you can start a business and can do a business anywhere from your home, from business. It's not necessary that you have a separate dedicated building, but there should be some registered office address on which SECP can correspond with you. Bilkul. So if someone has just recently moved to Pakistan and they don't have a taxation record, do they need an NTN? Initial years are always risky in financial terms. How does taxation work? Again, any question related to taxation, they relate to FBR. I think that is the best forum to reply on that. Okay. So though our system is integrated with the FBR, once you incorporate a company, so it is a hassle-free that you got your NTN number immediately of the individual subscribers and the company both. But what are their requirements? They are in the better position to explain it to you. Absolutely. I think NTN probably is a necessity. Can one reserve a name for their company, and how long can they hold that reservation for? The name is reserved for basically 60 days. After 60 days, the name is expired. Got it. And what are minimum and maximum limits of authorized and paid up capital? There is no minimum and maximum.
and there is no minimum and maximum capital of the authorized capital. So fees is calculated, our minimum fees is calculated on authorized capital of 1 lakh rupees. That is fees 1100 and plus the forms fees, total fees is 1600 something, but there is no limit. Got it. Can we submit Form A ourselves? Yes, you can submit online, you process yourself. All right, perfect. And can we share the presentation with the participants? May I share it with them after the session? Possible? Or Yes, maybe somewhere they can contact Yes. SECP if they have more questions? They can contact us for any queries regarding name availability and incorporation. It's a business center, and you can have our numbers on the website. All the questions on the website, numbers are on the website. 919-5405 is my number. 919-5118 is the number which is used by the public normally for resolving their queries. And there is a WhatsApp feature. You can always interact with us through WhatsApp, and we prefer the WhatsApp feature is used because on WhatsApp, on daily basis, we respond number of queries, and our satisfaction rate is 96%. If people are satisfied, people are satisfied for their resolve their queries on the WhatsApp, and you can also call us, no issues. Our numbers are publicly available on our website. You can. And this video is available on the National Incubation Center Facebook page. So if you would like to watch it again, it's right there, the whole presentation that Ms. Saila. This video is also available on our website of the SECP. There you go. Brilliant. Ms. Saila, thank you so much for a wonderful in-depth session. आपने पूरी कोशिश की कि जितना भी आप information हमारे viewers को आज दे सकते हैं आपने दिया. And I think everyone is just as appreciative as I am. Thank you so much for your time, and to our audience for joining in today, and hope to see you again for the next session with the SECP Innovation Office. Take care, Ms. Saila, and take care. Thank you, Numair. Thank you so much. Thank you. Take care, ma'am. Have a good evening. Take care. Of this.